हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज पुनः मैं आपके लिए वर्क पावर एनर्जी पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज लेके आया हूं जो जेई और नीट दोनों एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूलाज पे बिना टाइम वेस्ट किए। ओके बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वर्क को। वर्क की डेफिनेशन है, वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। हेयर एफ डॉट एस, हम ये देखते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है एंड फोर्स भी इस डायरेक्शन में ही है, एफ डी। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। So there will be maximum work because cos theta, if cos theta is 0, then work will be maximum, F dot S. So totally it depends upon the work does depend upon the force, angle between force and displacement. Suppose कीजिए हम यहाँ ये थीटा एंगल ये है, तो force will be F cos theta. If angle is 90 degree, then force will be 0. If angle between displacement and F is 180 degree, then force will be negative, F minus Fs cos 180 degree minus theta, right। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस डिपेंड्स अपॉन, हम देख रहे हैं और वेरिएबल फोर्स लग रहा है। सपोज कीजिए सपोज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स। ओके, हम यह देख रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई फोर्स है तो दिस इज वेरिएबल फोर्स, दिस इज सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब यहाँ पे हम इसको फोर्स कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम सपोज कीजिए कि डिस्टेंस लेते हैं ds। अगर ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस d है, देन वी टेक दिस एज ds, देन द इक्वेशन ऑफ द वर्क डन विल बी इक्वल टू F delta S from A to B। ओके, वर्क डन की यूनिट क्या है बच्चों, ऐसा यूनिट में वर्क डन की यूनिट है जूल एंड सीजीएस यूनिट, सीजीएस में है होती है आर्क, राइट। अब हम लेते हैं पावर। पावर इज द यूनिट टाइम में जो वर्क डन किया जाता है, दैट इज इक्वल टू पावर W upon T, और वर्क डन इक्वल टू F dot S upon V। V is the speed, V is called as speed, right। इंस्टेंटेनियस पावर में हम लेते हैं टोटल एनर्जी डिफरेंस इज अपॉन dt, that is equal to power at any point, at any instant, right। and the unit of this is joule per second, वर्क डन के लिए जूल एंड टाइम के लिए सेकेंड, that is equal to वाट। वाट में इसकी यूनिट को हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एनर्जी। बच्चों, हम एनर्जी को यहाँ देखते हैं कि एनर्जी वो एबिलिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन करती है। ओके, एनर्जी इज द एबिलिटी of the body to do some work, okay, and the unit of energy is same as joule, right, same as work, and it is joule। okay, kinetic energy is defined as 1 by 2 mv square। here we see that this is kinetic energy, and m is the mass of object and v is the velocity by which object is moving on applying any force। okay, here m is the mass of body and v is the speed of the body, right। हम ये देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी दो तरह की होती है जो हर मोमेंट पे कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी द बॉडी इज डिफाइंड एज mgh। है सपोज कीजिए दिस इज सरफेस एंड एनी ऑब्जेक्ट इज हेयर, its mass is m and it's placed at h height and g is the acceleration, then potential energy will be mgh।
Okay, g acceleration of earth, right? Here m is the mass of body, g is the free accelerations, and is the height of the okay. Gravitational potential energy. Next is gravitational potential energy. This potential energy by position, and this is gravitational potential energy by the earth. An object gravitational potential u is the mass times of the acceleration due to gravity times its height is above zero level. Is this okay? This as I explained already. And relation between kinetic energy and momentum. What is momentum? बच्चों momentum क्या होता है? This is P equal to mv. This is momentum. And we see kinetic energy is equal to here 1 by 2 mv square. Okay, mv square. हमने ऊपर इसको m ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, right? Then it becomes 1 by 2 mv square v square upon m, or p square by 2m, that is due to kinetic energy. If two bodies of different masses have same momentum, body with a greater mass shall have lesser kinetic energy. Okay, बच्चों हम समझते हैं कि दो मोटी साइज के लोग हैं, एक पतला है एक मोटा है, राइट? तो हम देखते हैं कि जो मोटी साइज का पर्सन है उसका मास ज्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एंड जो पतला है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्पीड से दौड़ पाएगा, जबकि मोटा आदमी कम स्पीड से दौड़ पाएगा. इज अंडरस्टूड? Okay, next, if two bodies of different masses have same kinetic energy, body with a greater mass shall have greater momentum, and momentum will be greater. Momentum, this is the momentum. इसका mass ज़्यादा, उसका momentum ज़्यादा. For two bodies having same mass, the body have greater momentum shall have a greater kinetic energy. Okay, इसकी mass ज़्यादा होगा, kinetic energy ज़्यादा होगी, right? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बच्चों? इट इज स्टेट द work done by on the body by the body is equal to the net charge changes in kinetic energy. Okay, delta k equals to work done. Okay, change in kinetic energy is equal to work done. Here the final velocity, initial velocity of any body, then the work done will be equal to 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mv square. Final kinetic energy for variable forces from A to B. I already explained you this F for variable forces. काइनेटिक एनर्जी या डिफरेंट होगी. वी फाइनल पे वेलोसिटी क्या है उसकी वी पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उन दोनों का जो चेंजेज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन. अब बच्चों हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, राइट? हम यह देखते हैं कि हमारे पास दो बॉडी है. ऑब्जेक्ट वन, mass of object 1 is m1 and mass of object 2 is m2, right? The velocity is u1 and u2. After collision, velocity will become v1 and v2 of object 1 m1 and m2, right? अब हम यह देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये आप ये देख रहे हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो यहाँ पे देखें टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन वुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन. ये हम देख रहे हैं चाहे इलास्टिक हो इनलास्टिक हो, मोमेंटम ऑलवेज विल कंजर्व. काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएगा जो हम आपको बता रहे हैं. दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्रेशन. कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्रेशन इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू बिफोर कोलिजन. ओके, जैसा हम बता रहे हैं u1 इज टू v2 अपॉन v1 अपॉन u1 माइनस u2. अब हम यहाँ अलग अलग केसेस देख रहे हैं. अगर बॉडी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, देन वैल्यू ऑफ E विल बी 1 बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल, राइट? अगर कोलिजन हमारा जो है इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक मीन्स value of E will be lesser than
1 and the velocity of v2 minus v1 will be greater than u1 minus, नहीं sorry यहाँ पे velocity of v2 minus v1 means after collision relative velocity will be lesser than relative velocity of before collision, right? And third one is perfectly elastic collision में e की वैल्यू 0 होगी because v2 minus v1 जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, दोनों ऑब्जेक्ट साथ मूव करेंगे परफेक्ट इलास्टिक में एंड दिस वन m1 m2 इन दोनों की वेलोसिटी v होगी, राइट? नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी इसमें कंजर्वेशन ऑफ लॉ में हम देखते हैं इट स्टेट दैट energy can neither be created nor destroyed, it can be converted from one form to another. The sum of total energy in this universe is always same. The sum of kinetic and potential energies of an object is called mechanical energy. The E is equal to k plus uk is kinetic and u is the potential energy. In accordance to law of conservation of energy, the total mechanical energy of the system always remains constant. mgh plus 1 by 2 mv square constant रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू यू प्लस के, राइट? ये हम देखते हैं कि u इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस के फाइनल। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये फॉर्मूला फाइनली हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसको हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ पार्शियल वेलोसिटी इन सेंट्रल फोर्स ऑफ फील्ड। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल माइनस पोटेंशियल एनर्जी से जो फॉर्मूला आ रहा है उससे वेलोसिटी हमारे आ जाती है, राइट? नेक्स्ट इलास्टिक कोलिजन हम आपको पहले बता चुके हैं बच्चों। इलास्टिक कोलिजन और इनलास्टिक कोलिजन के बारे में आपको पहले बता रहे। इसमें v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी जो तीन फॉर्मूले आपको बताए m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 this is law of momentum conservation and 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m to u2 square equal to 1/2 m v1 square plus v2 square. This is law of conservation of energy. And third one is E recitation constant v2 minus v1 upon u1 minus u2। इन तीन फॉर्मूलों से हम ये वैल्यू वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2, राइट? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब को both the collide bodies are the same, m1 is equal to m2, then the velocity of v1 will be equal to initial velocity of object 2 and velocity of v2 will be equal to the initial velocity of u1, right? Next, when the body b of mass m2 is initially at rest, then u2 will be equal to 0 and v1 will be m1 minus m2 upon m1 plus m2 u1 and v2 is equal to 2 m1 upon m1 plus m2 into u1। हम यहाँ देखते हैं कि m2 is very very smaller than m1, then velocity of v1 will be equal to u1 and v2 will equal to 2u1। ये इन तीनों फॉर्मूलों से बेसिक जो तीन फॉर्मूला है बेसिक सभी क्वेश्चंस इनसे सोल्व हो जाएंगे और ये वेलोसिटी जब हम पुट करेंगे तो हम रिजल्ट्स हमारा आ जाएगा, राइट? ये बच्चों इनइलास्टिक मोमेंटम भी आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं कि द मैक्सिमम ट्रांसफर एनर्जी अकर्स इफ m1 एंड m2, m1 और m2 जब इक्वल होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा एनर्जी का। एंड इफ k initial is the initial kinetic energy, k final is the final kinetic energy of the mass m1, the fractional decrease in kinetic energy is given by k initial minus k final upon k initial is equal to 1 minus v1 square upon u1 square. Further, if m2 is equal to nm1 and u2 is equal to 0, then k initial minus k final upon k initial equal to 4n upon 1 plus n का square। कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन मोमेंटम एंड एनर्जी ऑलरेडी मैं आपको इन दोनों इक्वेशंस के बारे में बता चुका हूँ। कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस, conservative force is equal to the negative gradient of the potential v of the field of the force. This force is also called to central forces, then this is will be equal to the negative of dv by dr। यहाँ मैंने आपको ये बताया था v इक्वल टू ई डी होता है, e इक्वल टू वी अपॉन डी एंड डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें पता है f इक्वल टू डी क्यू डी बाई डी क्यू इक्वल टू डी एफ, देन v डी बाई डी एफ इक्वल टू एफ।
द लाइन इंटीग्रल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0 एंड क्लोज पाथ में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हम देखते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल 1/2 kx², k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द elongation ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम du/dx विल बी 0। फॉर स्टेबल पोजीशन हम देखते हैं कि ux इज इक्वल टू मिनिमम du/dx, ux ये दिस इज du/dx, ये मिनिमम की तरफ आना चाहेगा एंड d²dx² ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव में होगा। फॉर अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल में हम क्या देखते हैं कि जब पोजीशन टॉप पे होती है ये अनस्टेबल होती है, ये दिस इज स्टेबल पोजीशन, दिस इज अनस्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन में ये du/dx विल बी 0 एंड dux²/dx² विल बी इक्वल टू नेगेटिव। फॉर न्यूट्रल पोजीशन में दिस विल बी इन हेयर, du/dx विल बी 0, राइट। तो बच्चों इस तरह मैंने कोशिश की वर्क पावर एनर्जी के कुछ फॉर्मूलाज एंड इस छोटी ब्रीफ थ्योरी आपको समझाने की। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं जेई और नीट के लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। आई होप कि आपके लिए यूजफुल साबित होगी। आप पढ़ते रहें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।